This is Chain Singh, and in this video we are going to discuss the questions and answers of chapter 3 Ishwaran the Storyteller, written by R.K. Lakshman. In the previous video we had understood and discussed the summary of the lesson. प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स समझेंगे और आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिए और क्वेश्चंस आंसर समझकर अपने नोटबुक में लिखिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1. इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन असेट टू महेंद्र? ईश्वरन महेंद्र के लिए किस प्रकार एक संपत्ति था या संपत्ति के समान था? आंसर: Ishwaran was a skilled cook. He worked for Mahendra, he cooked for him, washed his clothes and chatted away with his master at night. Mahendra always kept him wherever he was posted. The cook was also quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly. That's why he was an asset to Mahendra. ईश्वरन बहुत ही कुशल रसोइया था. वह महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था और रात में दोनों बातें करते थे. महेंद्र हमेशा जहाँ भी उसकी नौकरी के कारण जाना पड़ता था वह उसको साथ में ले जाता था और ईश्वरन भी बिना शिकायत के उसके साथ में जाता था. इसलिए दोनों में बहुत अच्छे संबंध थे और इसी कारण ईश्वरन महेंद्र के लिए एक संपत्ति था. Question number 2. How does Ishwaran describe the uprooted tree on the highway? What effect does he want to create in his listeners? ईश्वरन सड़क पर पड़े एक उखड़े वृक्ष का कैसे वर्णन करता है? वह अपने सुनने वालों पर क्या प्रभाव डालना चाहता है? आंसर: Ishwaran described the uprooted tree with eyebrows suitably arched, with hands held out in dramatic gesture, and said that road was alone. Suddenly he saw a enormous bushy beast lying sprawled across the road. He was half inclined to turn and go back. As he come closer and found that it was fallen tree. Ishwaran described even a simple incident in such an interesting, dramatic way, with gestures, that it created suspense and surprise in his listeners. ईश्वरन उखड़े हुए पेड़ का वर्णन करने के लिए अपने आईब्रोज तिरछी कर लेता है, हाथ फैला करके बहुत ही नाटकीय तरीके से कहता है कि मैं रोड पर अकेले चल रहा था और मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा झाड़ी के समान जानवर रोड पर पड़ा हुआ है. मैं पीछे जाने वाला था, लेकिन जब मैं पास में जाकर देखा तो वह एक गिरा हुआ बहुत बड़ा पेड़ था. ईश्वरन छोटी छोटी साधारण चीज़ों को बहुत ही रोमांचक तरीके से, नाटकीय ढंग से बताता था ताकि वह जो उसके सुनने वाले हैं उनमें रहस्य और आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो जाए. You can stop the video and write down the questions and answers. Now let's go to the question number 3. How does he narrated the story of the tusker? Does it appear to be plausible? वह हाथी की कहानी कैसे सुनाता है? क्या यह संभव लगता है? Answer: Ishwaran had a great narrative skill. Once he narrated the story of a tusker escaped from the jungle. The tusker destroyed everything what came into the way. At last, it reached to Ishwaran's school and pulled out football goalpost, teasing down volleyball net. Everyone was helplessly watching the whole drama. Suddenly, Ishwaran grabbed a cane from the hands of a teacher and faced the dangerous tusker. He attacked with the cane on the third toenail of tusker, and it stunned, shivered and head to foot and collapsed. No, it does not appear to be plausible, since
It is not possible with a small can to make a dangerous elephant collapsed. ईश्वरन किसी भी छोटी चीज को बड़ी ही कुशलता के साथ में नाटकीय ढंग से बताने में माहिर था। एक बार वह एक हाथी की कहानी सुनाता है जो जंगल से हिंसक होकर के गांव में आ जाता है और उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं वह उन सब चीज़ों को नष्ट करता जाता है और आखिर में हाथी ईश्वरन जहां पढ़ता था उस स्कूल में आ जाता है और फुटबॉल और वॉलीबॉल नेट और पोस्ट को तोड़ देता है। सभी लोग असहाय होकर के पूरा नाटक देख रहे थे, लेकिन ईश्वरन एक छड़ी लेकर के उस खतरनाक हाथी के पास जाता है और उसके पैर के तीसरे नाखून पर जोर से मारता है। हाथी दर्द से कराह उठता है और थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाता है। यह संभव नहीं लगता है क्योंकि एक छोटी छड़ी से एक खतरनाक हाथी को नहीं गिराया जा सकता है। Question number 4. Why does the author say that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of TV in Mahendra's living quarters? लेखक क्यों कहता है कि महेंद्र के घर में ईश्वरन टीवी की कमी की पूर्ति बहुत अच्छी तरह से करता था? आंसर: The author says so because Ishwaran was a fascinating storyteller. He narrated every day some story packed with adventure, horror or suspense. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. In fact, Mahendra had a living TV in Ishwaran. That's why he never felt the need of an electronic TV. Ishwaran seemed to more than make up the absence of TV in Mahendra's house. लेखक इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि ईश्वरन बहुत ही अच्छे तरीके से कहानी बताता था, बहुत ही आकर्षक रूप में वह कहानियों को बताता था। वह रोज दिन एक नई कहानी बताता था, रोमांचक भरे हों या डरावने या रहस्य भरे कहानियां वह बताता था। चाहे कहानियां विश्वसनीय हों या नहीं, महेंद्र बड़े मज़े के साथ में उन कहानियों को सुनता था क्योंकि ईश्वरन बहुत ही अनोखे तरीके से कहानियों को बताता था। ईश्वरन के रूप में महेंद्र के घर में टीवी था और इसी कारण महेंद्र को कभी भी टीवी की कमी महसूस नहीं होती है क्योंकि ईश्वरन टीवी की कमी को पूरा कर देता था, अच्छी कहानियां बता करके और बहुत ही रोमांचक कहानियों के रूप में उसका मनोरंजन होता रहता था, इसलिए उसको टीवी की कमी नहीं महसूस होती है। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5. Mahendra calls ghost or spirits a figment of imagination. What happens to him on a full moon night? महेंद्र भूत व प्रेतात्माओं को काल्पनिक मानता है या मनगढ़ंत मानता है। उसे पूर्णिमा की रात क्या होता है या उसके साथ पूर्णिमा की रात को क्या घटना घटती है? आंसर: महेंद्र was a man with scientific approach. He often chided Ishwaran not to believe ghosts or spirits because these all are nothing but a figment of the imagination. On one full moon night, he heard a low moan close to his window. At first he thought it as a cat prowling around for mice, but the sound became louder and louder. He looked through the window and found a dark cloudy form clutching a bundle. It was his ghastly experience. महेंद्र वैज्ञानिक सोच रखने वाला व्यक्ति था। वह ईश्वरन को हमेशा भूत और प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं करने के लिए कहता था और ये सारी चीज़ें कल्पना की बातें हैं या काल्पनिक कहानियां वह कहता है। एक दिन पूर्णिमा की रात को वह अपने कमरे के समीप किसी की कराहने की आवाज़ सुनाई देती है और वह खिड़की के पास जाकर देखता है। पहले वह सोचता है कि बिल्ली होगी जो चूहों के लिए यहाँ वहाँ घूम रही है, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ बढ़ती गई।
जब वह खिड़की से बाहर देखा तो उसने एक बहुत बड़ा आकार एक गठरी लिए हुए उसकी तरफ आ रहा था और वह बहुत डर गया और यह इसके लिए बहुत ही बुरा अनुभव था। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 6। कैन यू थिंक द अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी? क्या आप कहानी का कोई दूसरा अंत सोच सकते हैं? आंसर: The other ending of the story could be as Mahendra could have found the right reason for his ghastly experience. He should not resolve to go on leave, but face the bull by its horns. In scientific ending, it would be better as Mahendra could catch Ishwaran's trick red-handed next time. कहानी का दूसरा अंत इस प्रकार भी हो सकता है कि महेंद्र उन सभी घटनाओं और बुरे या डरावने अनुभवों का कारण ढूंढ लेता और उन सभी घटनाओं को वह वैज्ञानिक तरीके से सामना करे और उनका हल वह निकाल सकता था। और यह भी अच्छा होता कि वह ईश्वरन को उनकी कहानी बताने का जो तरीका था उसको वह रंगे हाथों पकड़ लेता। इस प्रकार से हमने इस लेसन के सभी क्वेश्चंस आंसर समझ लिए हैं। See you with a new lesson. Have a nice day.